Hi student, again Jasmine Paras welcome you on my channel. We have completed dissolution practical number 1, 2, 4, 5 and 6. Now we will move to the 8th. I know 3 is pending and 7th is for your self-study. You try yourself. I will put solution of 7th in my description box in my next video. ठीक है? So आपको भी थोड़ा बहुत करना पड़ेगा तो ये आपको समझेगा कि आपको कितना आ रहा है. तो थर्ड I will explain you, but seventh you have to do yourself. Now we'll move to the 8th one. Now this is the new one when one partner become insolvent. If you remember my first video, I have given two types of dissolution. One is simple dissolution and second one is dissolution under insolvency. So this is the second method, dissolution under insolvency. Okay, so this is a new for you. Rest part is it's similar to last problem, but one or two adjustment it's little bit difficult and different, but don't worry, मैं explain आपको अच्छे से करूँगी. ठीक है? Now we'll read the first this problem number 8. Sitaram, Gangaram and Rajaram are the partner. Their ratio 4:2:3. Make underline, make a habit because this always we need it. Okay? On 1st April 19 they agreed to dissolve the partnership firm. So their balance sheet 31st March 2019. इसके एक दिन बाद उन्होंने डिसाइड किया कि चलो यार हम हमारी फर्म बंद करते हैं. ठीक है? तो ये बैलेंस शीट उनकी 31st March 2019. दिस इज द लास्ट अकाउंटिंग डेट. देन so this is the balance sheet. बहुत सारे एसेट है एंड लायबिलिटी भी है. तो देखते हैं क्या हो रहा है. These are the adjustment. So we'll directly start the problem. As you know, we have to open realization account, partners capital and cash account. Okay, if you read the problem properly, here they have given liability, loan from Tukaram, sundry creditors and bills payable, all are external liability. So see, here you might be get confused. They have given Tukaram, loan from Tukaram. तो शायद आपको ऐसे लगेगा yes, loan from Tukaram मतलब partners का loan होगा, but please before that just read the name of the partners. ठीक है? These are the partners, सीताराम, गंगाराम and राजाराम. तुकाराम is not the partner. Confuse करने के लिए उन्होंने ये नाम सिमिलर दिया है. तो तुकाराम is also external liability. तो ये जो दोनों के साथ हम करेंगे वही हम इसके साथ भी करेंगे. So no need to open separate account for Tukaram. I hope you are getting it. Then so now here we have to open realization account, bank account, that means cash account and capital account. ये तो हम हमेशा ओपन ही करते थे. ठीक है? इसमें नया कुछ भी नहीं है. This is realization and these are the partners capital and cash. Shall we start? चलो. Now what we have to do? Of course, we have to transfer all assets to the realization which side? Of course, debit side. Why debit side? Because assets show debit side. So this all will go debit side. See here, only copy and paste here. Make a total. See 55,000 से start किया and 28,000 stop किया. ठीक है? So make a total. Now cash in hand, cash at bank. Now no need to open two separate account, bank account and cash account. ये दोनों एक ही अकाउंट में लिखो. That is why put cash oblique bank. दोनों का बैलेंस एक ही जगह पे लिखो. See. ठीक है? Done. This side done. Now we'll move to the liability side. Now what liability? Sitaram, Gangaram, Rajaram capital है. Already see you can see here capital account. So write capital account credit side 65, 45, 7,000. So liability show credit side. So always transfer credit side. Now reserve fund, as you know, we have to distribute among the partners. Again credit side. So distribute. Already they have given the ratio 4:2:3 और आपको अब रेशियो आ रहा है निकालने के लिए. नहीं आ रहा है तो फिर से सीखो, प्रैक्टिस करो. ठीक है? So 8,000, 4,000, 6,000 ये रिजर्व फंड हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. प्रॉफिट एंड लॉस, दिस इज कॉल्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. तो ये भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. ठीक है?
अनडिस्ट्रीब्यूट इसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। दैट मीन्स कुछ पहले कुछ साल का उन्होंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था, बट अब तो डिसॉल्व करना है फर्म, अब तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करना ही होगा, तो कर दिया उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट। सेम रेशियो 4:2:3। दैट नाउ दिस इज द एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या करते हैं हम लोग, ऑफ कोर्स रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर करते थे। तीनों लायबिलिटी मैंने लिखी, मेक अ टोटल 26,600। So that is also finished. So within 3 to 4 minutes we finish our posting and इसके मार्क्स आपको आराम से 2-2.5 मार्क्स मिल गए। सिर्फ पोस्टिंग करने के आपको 2.5 मार्क्स, दैट मीन्स 2.5 विच बिकम 3, तो 3 मार्क्स तो मिल गए। ठीक है, नाउ विल स्टार्ट द एडजस्टमेंट। नाउ सी हियर, आपके सामने मैंने पूरा प्रॉब्लम ही रखा है। तो दिस इज ऑल डन, पोस्टिंग डन। नाउ विल स्टार्ट द एडजस्टमेंट। असेट रियलाइज, तो एक अकाउंट किस में जाएगा, इफेक्ट रियलाइजेशन में। क्या रियलाइज किया है, बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर इन्वेस्टमेंट बिल रिसीवेबल डेटर्स, ऑलमोस्ट ऑल स्टॉक, ऑलमोस्ट ऑल असेट दे रियलाइज, दैट मीन्स दे सेल आउट। तो कौन से दो इफेक्ट आएगा, आपको सेल किया है मतलब एक कैश अकाउंट और दूसरा रियलाइजेशन। तो चलो रियलाइजेशन की विच साइड, ये सब ने एंट्री कहाँ से की थी, डेबिट साइड, सो विल गो क्रेडिट साइड here। ठीक है, क्रेडिट साइड बिकॉज दिस इज द इनकम फॉर द फर्म, ये सब बेच चुके हैं वो, उन्हें 1,06,300 का इनकम हुआ है। सो रियलाइजेशन इज ए नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिटर इनकम एंड डेटर डेबिट एक्सपेंसेस। सो हियर इनकम, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में कैश अकाउंट, तो कैश के डेबिट में रियलाइजेशन अकाउंट। वेरी इजी। सी मैंने पूरा ये सब एक साथ ही लिख कर दिया है, यहाँ पे बार बार अलग अलग करने की जरूरत नहीं, ये पूरा कंबाइन करो अब टू डेटर्स तक, बाय कैश लिखो और ये सबकी एडिशन करो। ठीक है, नाउ ऑल द लायबिलिटी पेड ऑफ, चलो ऑल द लायबिलिटी पेड ऑफ करो पे। दिस इज द एक्सपेंसेस फॉर द फर्म, पे करना है, तो डेबिट द एक्सपेंसेस। व्हाट विल राइट, ऑफ कोर्स सॉरी हियर इट शुड बी अ 2, हाँ गलती से हो गया ये टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है, so 2 cash bank loan from Tukaram creditors and bills payable 4,600, same amount we have to take, when they not give the amount that time we have to take the same amount, तो ये भी पे हो चुकी है। ठीक है, कैश पे किया है मतलब कैश किया है, तो रियलाइजेशन के डेबिट में कैश, तो कैश के क्रेडिट में रियलाइजेशन। सी दिस इज ऑल इनकम, इंक्रीज हो गई कैश, सो वी राइट डेबिट साइड। नाउ ये हमने पे किया है सब लायबिलिटी, कैश गोज आउट, कम हो चुकी है कैश, सो वी राइट क्रेडिट साइड। सो डन, नाउ yes this is also done। नाउ नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन ₹800। ये सब काम करने के लिए उनको कुछ तो खर्चा हुआ ना रियलाइजेशन का, तो उनको खर्चा आ गया 800, सो दिस इज अगेन एक्सपेंसेस। So again we'll write debit side, expenses paid किया, that means second effect will go cash, so we'll write cash account to realization expenses 800. Done? So 800 pay किया, this is expenses for the firm, so debit the expenses. So realization के debit में cash, तो cash के credit में realization 800. Done? Now the main part आ चुका है आपका। अगर सिर्फ इतना प्रॉब्लम करके रखोगे तो भी आपको 6 to 7 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, लेकिन हमें तो फुल मार्क आउट ऑफ मार्क्स चाहिए ना, तो यहाँ पे ये नहीं एडजस्टमेंट, अब ध्यान से पढ़ना है, समझना है, लिखना है। राजाराम बिकम बैंकक्रप्ट, बैंकक्रप्ट मतलब इंसॉल्वेंट, राजाराम बिकम बैंकक्रप्ट। देखो इधर ही हमें पता चलना चाहिए था, ये दोनों का कैपिटल देखो कितना अच्छा भारी भक्कम है और इसका सिर्फ 7,000 है, तो इधर ही हमें समझना चाहिए था कि बेचारे की हालत कुछ ठीक नहीं है। ठीक है, तो राजा राम बिकम बैंकक्रप्ट मतलब इंसॉल्वेंट एंड 1,100 ओनली रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। तो आपको पता है जब वो इंसॉल्वेंट होता है तो क्या करती है फर्म, उसके घर जाके उसकी जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो सेल करती है और पैसे वसूल करती है। जैसे हमने अब न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, विजय माल्या, नीरव मोदी, है ना, गवर्नमेंट ने क्या किया, उनकी सब प्रॉपर्टी सील कर दी, कुछ बेच दी, उससे पैसे रिकवर कर दिए उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल आउट करके, है ना। तो यहाँ पे भी उन्होंने सेल किया। तो विल सी कैसे करना है।
Okay, now first tell me the effect. Effect किधर जाएगा? This is a totally new adjustment for you. लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आपको पता चलेगा कि इफेक्ट कहाँ जाएगा. We open only these 3 अकाउंट. कोई और एक्स्ट्रा अकाउंट तो कौन ओपन किया ही नहीं है हमने. तो यही 3 अकाउंट में से कोई तो 2 अकाउंट में हमें जाना है. Now which account? So simple, Raja Ram. That means they have given your name of the partners. So one effect will go partner's capital account, because here they mention Raja Ram become bankrupt. Raja Ram is a partner. So one effect will go partner's capital. Second, recovered from his estate. कुछ पैसे मिले, देखो यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं पैसे. तो ऑफकोर्स सेकेंड इफेक्ट विल गो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट. समझ में आया? पहले ये डिसाइड करो कि कौन से अकाउंट में जाना है. डेबिट क्रेडिट तो फिर आपको आ जाएगा. ठीक है. सो वी हैव टू गो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट and next we have to go cash account. तो ये तो रूल पता है. पार्टनर्स कैपिटल केस में हम कैश का नाम लिखेंगे, कैश केस में पार्टनर्स कैपिटल का नाम लिखेंगे. बट द बिग क्वेश्चन इज डेबिट और क्रेडिट. सो नाउ टेल मी, राजा राम he recovered from his estate. So Raja Ram is the giver. Here Raja Ram is the giver. So partners capital is a personal account. Debit the receiver, credit the giver. So here Raja Ram is the giver. So credit में लिखो Raja Ram 1100. And what will write here? Cash. Because दूसरा इफेक्ट है किसमें हम करने वाले? कैश में. So write here cash oblique bank. ठीक है. Now second effect, if partners capital के क्रेडिट में कैश, तो कैश के डेबिट में राजा राम कैपिटल. कि कैश कम से ना राजा राम से वसूल किया, तो अगेन कैश इंक्रीज. अंडरस्टूड? डन. नाउ विल सी क्लोजिंग थेरो. अभी भी हमको आगे कुछ प्रोसीजर करनी है. ठीक है. इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है. डोंट वरी, बट मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से. ठीक है. नाउ सी इट्स टाइम टू क्लोज. सब हो चुकी है एडजस्टमेंट. इट्स टाइम टू क्लोज. क्लोज करो. ऑफ कोर्स डेबिट साइड कम हेवी, इधर ही पता चलता है हमको डेबिट साइड हेवी आई है. तो डेबिट माइनस क्रेडिट, ये दोनों की टोटल करो और इसमें से माइनस करो. विल गेट द बैलेंस. इट कम्स 54,000. टेक्स्ट बुक में चेक करो करेक्ट आंसर आया है क्या. ठीक है. दिस इज अ लॉस. व्हाई दिस इज अ लॉस? बिकॉज सी हियर डेबिट साइड हेवी, क्रेडिट साइड है ना. सो दिस इज द हेवी. एक्सपेंसेस साइड इज हेवी. नॉमिनल अकाउंट का डेबिट साइड मतलब क्या होता है? एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस हेवी है. खर्चा अगर ज्यादा होगा इनकम से तो आपको हमको लॉस ही आएगा. ठीक है. तो दिस इज 54,000. ये 54,000 हम डिवाइड करेंगे पार्टनर्स में. अगर यहाँ पे क्रेडिट है तो हम लोग डिवाइड करेंगे पार्टनर्स के डेबिट में. रेशियो यू नो 4:2:3 रेशियो इज गिवन. ठीक है. नाउ यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है देखो. ठीक है. इसके पहले हम अब ये क्लोज करते हैं. इसमें से पहले क्लोज क्या करना है? जो इंसॉल्वेंट होता है पहले उसका अकाउंट क्लोज करना है. ये रूल याद रखो. ये तीनों में से इंसॉल्वेंट कौन हुआ है? राजा राम. तो हम राजा राम को क्लोज करेंगे. विच हेवी कम साइड? टेल मी. दिस साइड कम हेवी 18,000. So here write 18,000. Done. So 18,000 minus this all. ये पूरा माइनस करो. कितना बैलेंस आता है? ओके. नाउ पे अटेंशन हियर. हमें इमीडिएटली घाई नहीं करनी है यहाँ पे लिखने की. हमें यहाँ पे कुछ तो करना है. तो फर्स्ट विल अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव टू डू. ठीक है. सी हियर फर्स्ट वी हैव टू राइट राजा राम कैपिटल डेबिट माइनस क्रेडिट. तो डेबिट 18,000 माइनस क्रेडिट, इसकी सबकी टोटल आप करो. राजा राम की क्रेडिट की सबकी टोटल करो. इट कम्स 15,900. सो डेबिट माइनस क्रेडिट आंसर इज 2,100. ठीक है. अब ध्यान से सुनना है. 2,100 यहाँ पे बैलेंस आ रहा है. ठीक है. देखो जानबूझ के मैंने साइड में लिखा है. पेंसिल से आप भी साइड में लिखो. अभी इधर नहीं लिखना है हमें. ये इसका क्या करना है मैं बताती हूँ आपको. ना इसकी डेफिशिएंसी, इसका मतलब क्या? राजा राम को पैसे कम गिर रहे हैं 2,100. अगर डेबिट से माइनस करोगे लॉस ही ज्यादा है उसका, और ये कम है क्रेडिट साइड. तो उसका जो बैलेंस आ रहा है क्रेडिट में आ रहा है. यूजुअली हम देखते हैं डेबिट साइड आता है. देखो डेबिट साइड आता है, फिर हम यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं बिकॉज दे आर द रिसीवर. बट यहाँ पे राजा का
बैलेंस क्रेडिट में आया है, दैट मीन्स ही इज द गिवर। इसका मतलब उसको फर्म को पैसे देने हैं और उल्टा फर्म को ही देने हैं 2100, बट नाउ ही इज नॉट कैपेबल टू गिव द कैश टू द फर्म। ऐसे वक्त क्या करना है? नाउ कम हियर, व्हेन वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, रिमेनिंग पार्टनर हैज टू शेयर हिज डेफिशिएंसी। अब ये पैसे हालांकि राजा राम ने फर्म को पे करना चाहिए था, बट वो तो इंसॉल्वेंट हो गया, तो अब ये जो है इसमें कौन कंट्रीब्यूट करेगा? इसमें रिमेनिंग पार्टनर मतलब सीता एंड गंगा, ये दोनों लोग क्या करेंगे? कंट्रीब्यूट करेंगे। आया समझ में? ठीक है, चलो मैं अपना रेगुलर एग्जांपल देती हूँ। सपोज आप फ्रेंड हो, 3 फ्रेंड हो, आप गए हो रेस्टोरेंट, ठीक है, तीनों ने अच्छे से खाया, भरपेट एंजॉय किया, और जब पैसे देने की बारी आई तो आपने तीनों में डिवाइड किया, लेकिन उसमें से एक फ्रेंड का जो पैसे थे उसने वो पैसे गलती से पॉकेट पैसे का लेकर ही नहीं आया, उसके पास पैसे ही नहीं थे, सो दैट फ्रेंड बिकम्स इंसॉल्वेंट। ऐसे वक्त आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप तीनों बर्तन धोगे किचन में रेस्टोरेंट के, या सिर्फ अपने फ्रेंड को बोलोगे जा बर्तन धो करा? ऑफ कोर्स नॉट। फॉर अ टाइम बीइंग आप क्या करोगे? जो बचे हुए दोस्त है वो शेयर करेंगे और वो होटल का बिल पे करेंगे। सेम वो रूल हमको यहाँ एप्लीकेबल अप्लाई करना है। व्हेन वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, रेस्ट रिमेनिंग पार्टनर्स विल शेयर हिज डेफिशिएंसी। जैसे होटल में 2 फ्रेंड ने बिल बांट कर लिया, वैसे यहाँ पे भी ये दोनों क्या करेंगे? गिवर बनेंगे। ये बोलेंगे ठीक है भैया हम पे करते हैं, ठीक है। तो अब पे कैसे करेंगे? कितना पे करना है? कितना कम है? 2100। तो पे करेंगे, कौन करेगा? सीता एंड गंगा। कौन से रेशियो से करेंगे? 4:2। देखो यहाँ पे सीता एंड गंगा का रेशियो। अब राजा राम का रेशियो तो नहीं लेना है हमें, क्योंकि पे तो ये 2 बेचारे करेंगे, तो 4:2। तो 2100 डिवाइड करो 4:2 से। देखो, तो सीता ने कंट्रीब्यूट किया 1400, गंगा ने कंट्रीब्यूट किया 700। तो सीता कैपिटल, यहाँ पे देखो 1400 लिखो, गीता सॉरी गंगा कैपिटल 700। अब ये कट कर दो, ठीक है। तो ये 2100 का हिसाब हमने यहाँ पे कर दिया है, 1400 एंड 700 डन। नाउ एवरी एडजस्टमेंट हैज अ ट्रू इफेक्ट। तो अब देखो ये पहले बार ऐसे होने वाला है कि एक ही अकाउंट में 2 इफेक्ट जाएंगे, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में अगर सीता और गंगा है, तो गंगा और सीता के किसका नाम आएगा? राजा राम का नाम आएगा। सीता ने किया था कंट्रीब्यूट 1400, गंगा ने किया 700। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समझ लो, बार बार वीडियो देखो समझ में आएगा। थोड़ा वो रेस्टोरेंट का एग्जांपल याद रखो तो वो जल्दी से आपके दिमाग में जाएगा, ठीक है। तो ये एक ऐसी एडजस्टमेंट है आपके पूरे चैप्टर में, रिजोल्यूशन के चैप्टर में, जहाँ पे दोनों इफेक्ट एक ही अकाउंट में आते हैं। अभी तक हमने देखा कि एक अकाउंट रियलाइजेशन में जाता है तो दूसरा कैश में, या एक अकाउंट पार्टनर्स में जाता है तो दूसरा कैश में, एक अकाउंट कैश में जाता है तो दूसरा कोई और पार्टनर्स लोन में, ऐसे होता है। बट यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि एक इफेक्ट यहाँ पे क्रेडिट में दिया है और एक इफेक्ट यहाँ पे डेबिट में दिया है, ठीक है। नाउ ओवर, सो नाउ इट्स टाइम टू क्लोज द अकाउंट। राजा राम का तो अब टैली हो गया, देखो अब इसकी टोटल 18,000 ही आएगी आपकी, इसकी भी टैली हो गया। नाउ क्लोज गंगा। अब नॉर्मली जैसे क्लोज करते वैसे करो। देखो गंगा की टोटल 5200 आती है, माइनस ये भी लेना है इसमें, माइनस 12,000 प्लस 700, ये सब ये दोनों के टोटल माइनस करके विल गेट द आंसर 37,500। सेम अबाउट सीता, ये तीनों की टोटल करो, वी गेट 75,400। लिखो यहाँ पे 75,400, और इसमें से ये दोनों माइनस करो, ठीक है, डन। नाउ ये दोनों क्या करना है? कौन सा अकाउंट बचा है टैली करना? कैश। सो विल राइट हियर टू कैश, दे बिकम द रिसीवर। सब कुछ हो चुका है, उन्होंने राजा का भी डेफिशिएंसी पे कर चुके हैं। नाउ इट्स टाइम टू डिस्ट्रीब्यूट द कैश अमंग द पार्टनर। तो इन्होंने दे आर द रिसीवर। नाउ पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में कैश, तो कैश के क्रेडिट में पार्टनर्स कैपिटल, सीताराम एंड गंगाराम, एंड मेक अ टोटल। हो गई टैली। देखो टेक्स्ट बुक में आंसर चेक करो करेक्ट है क्या, डन। सी बहुत सिंपल है, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना है, बट आई होप
अगर आप 4-5 बार समझ के करोगे ना, बार बार थोड़ा सा ध्यान रखोगे ना कि हमको यहाँ पे ऐसे लिखना है और यहाँ पे स्लीपिंग लाइन लिखना है या फिर स्टैंडिंग लाइन के तरीके से लिखना है, तो आपको याद आ जाएगा। प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो आपको प्रैक्टिस करनी ही है। आई होप आपको समझ में आया। ओके चलो, बाय, हैव अ नाइस डे। लाइक करो पसंद आया तो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।